اور خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی اور اہم خبر کے ساتھ۔ حج کمیٹی آف انڈیا اور انتظامیہ کے اشتراک سے جامع مسجد کلگام میں سفر محمود پر جانے والے عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں علماء کرام کے علاوہ حج کمیٹی آف انڈیا اور ضلع انتظامیہ کے تجربے کاروں اور ماہرین نے جانکاری دی۔ اس موقع پر ضلع کے 4 بلاکس کلگام، دیوسر، پہلو اور دمہال ہانجی پورہ کے عازمین نے حصہ لیا۔ تحصیلدار کلگام بلال احمد اور متعلقہ عملے پروگرام میں شریک رہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں آسمان پر جزوی طور پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ مختلف ممالک پر رک کر بارش ہونے کا امکان ہے، مقامات پر رکنے کا بارش ہے اور آج دوپہر یا شام تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اور اگر 3 سے 4 مئی کے درمیان موسم کی پیشگوئی کی بات کی جائے تو ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش بہت جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں محکمہ موسمیات کے دفتر نے کہا کہ 4 مئی تک موسم کا مزاج مستقم نہیں رہے گا، اسی لیے کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے باغات میں چھڑکاؤ کے اپنے منصوبے ملتوی کریں۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے کئی دنوں سے وادی کشمیر میں موسلادھار دار بارش جو سلسلہ جو اس کا ہنوز جاری ہے اور آج جموں کشمیر میں آسمان پر جزوی طور پر بادل چھائے ہوئے ہیں، مختلف مقامات پر رک رک کر بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آج دوپہر یا شام تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور اگر 3 سے 4 مئی تک کے موسم کی بات کی جائے تو ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش بہت جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں محکمہ موسمیات کے دفتر نے کہا کہ 4 مئی تک موسم کا مزاج مستقم نہیں رہے گا، یعنی اس کا صاف مطلب ہے کہ وادی کشمیر میں موسم فی الحال آبر آلود ہے اور کئی سارے مقامات پر بارش ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی لیے اسی تناظر میں کسانوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے باغات میں چھڑکاؤ کے اپنے منصوبے کو فی الحال کے لیے ترک کریں، ملتوی کریں۔ جو ہی موسم ٹھیک ہو جائے گا اور باغبانوں کے لیے بھی تمام ہدایات جاری کی جائے گی۔ فی الحال کے لیے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ بہت سارے مقامات پر رک رک کر بارش ہونے کا امکان ہے۔ آج دوپہر یا شام تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ 3 سے 4 مئی تک موسم کی پیشگوئی کی بات کی جائے تو ہلکے سے درمیانی درجے کی بارش بہت سارے تو اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے رئیس ماگرے جڑ چکے ہیں۔ رئیس ماگرے، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ ہے موسمی صورتحال وادی کشمیر میں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کچھ ہدایت جاری کی گئی ہے؟ جی ہاں، بالکل جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی جو ہے یہاں پہ پارٹلی جو ہے کلاؤڈی یہاں پہ سکے ہیں اور ابھی یہاں پہ بھی جو ہے آج بھی موسم جو ہے وہ اوبر آلود ہی ہے اور آج بھی بارش کے چانسز ہیں۔ اور وہیں بتا دیں کہ 4 مئی تک جو ہے وہ موسم اسی طرح رہے گا، ایسا جو ہے محکمہ موسمیات نے یہاں پہ پریڈکشن کی ہے۔ اور وہیں بتا دیں کہ جو کسان ہیں ان کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ چھڑکاؤ کا جو ان کا منصوبہ ہے اس کو وہ فی الحال جو ہے وہ پوسٹ پون کرے 4 مئی تک، کیونکہ جو موسم ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑی علاقے ہیں جیسے گلمرگ، اس میں وہاں پہ جو ہے کچھ دن پہلے برف باری بھی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس موسم کو جو باہر سے آئے ہوئے سیاح ہے وہ کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو یہاں پہ کسان ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس موسم کو لے کے پریشان ہے، کیونکہ ان کے فصلوں کو اس بارش سے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر برف باری ہوتی ہے یا بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ بارشوں کی وجہ سے جو فصل ہے وہ تباہ ہوتی ہے، اور ایسے میں وہ دعا کر رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ سازگار رہے، موسم میں امپرومنٹ آئے۔ لیکن فی الحال جو محکمہ موسمیات کی طرف سے جو پریڈکشن کی گئی ہے اس میں یہی ہے کہ ابھی آنے والے چند دنوں تک موسم اسی طرح رہے گا اور 4 مئی تک جو ہے موسم جو ہے وہ اسی طرح رہے گا اور کئی مقامات پہ جو ہے وہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپر ریچز ہے وہاں پہ ہلکی پھلکی جو برف باری ہے وہ ہو سکتی ہے۔ جی انشاءاللہ۔ رئیس ماگرے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اوپری علاقوں میں برف باری ہوئی ہے اور جس کے ساتھ اولے بھی پڑے ہیں تو کسانوں کا کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے، تو ایسے میں انتظامیہ نے ان کے لیے کیا کچھ اقدام اٹھائے؟
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह से मौसम में जो तब्दीली, अचानक तब्दीली आई है और जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी है, तो उसको लेके किसान जो है वो परेशान है। लेकिन अब ऐसे में जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है और जहाँ पे भी उनको लगता है कि नुकसान हो रहा है, वहाँ पे कंपनसेट जो है वो लोग इस किसानों को किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरह से अभी प्रेडिक्शन जो है फिर आगे चंद दिनों की है कि कुछ आने वाले और दिनों में जो है वो मौसम का जो मिजाज वो इसी तरह रहने वाला है, तो उसको लेके जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। दूसरी तरफ से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस साल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जो है वो सया यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि मनोज सिन्हा ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा सया आएंगे इस साल, लेकिन वो सिलसिला भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ से मौसम जो है वो किसानों को परेशान कर रहा है और ऐसे में किसान दुआ कर रहे हैं कि ये मौसम जो है वो उसमें सुधार हो ताकि उनकी फसलें बढ़ सके। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनमें खुशी है, क्योंकि जिस तरह से मौसम यहाँ पे हो रहा है, खुशगवार हो रहा है, तो उस मौसम को देखने के लिए बाहर से सयाह क्या रईस मांगरे माना जाए कि वादी कश्मीर का जो इस वक्त मौसम है वो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है? बिल्कुल। जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और जो टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट आ रही है, लेकिन उतनी भी सर्दी नहीं है कि जिसको हम जो माइनस में यहाँ पे सर्दी होती है उतनी भी नहीं है। यही वजह है कि जो बाहर के सयाह है वो इस मौसम को एंजॉय करते हैं, यहाँ पे इस मौसम के लिए वो यहाँ पे आते हैं। अगर उनको बर्फबारी या इस तरह का मौसम मिल जाता है, जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो जो अपर रीचेस है वहाँ पे बर्फबारी है, अभी भी मौजूद है। जो पीक्स है वहाँ पे, जो टॉप पीक्स है वहाँ पे बर्फबारी है, तो उस मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर से जो सयाह है वो यही चीजें देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बाहर ज्यादा सर्दी होती है, बाहर ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है, तो उस चीज को देखते हुए जो है वो सयाह इस मौसम में यहाँ का रुख ज्यादा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये मौसम जो है अब किसानों के लिए वो परेशानी का सबब भी बन रहा है, क्योंकि अगर बारिशें इसी तरह जारी रही तो जो फसलें हैं वो और तबाह होंगी और किसान जो है उनको और नुकसान होगा। जी इंशा। रईस मांगरे, आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखेंगे कि मौसमी सूरत हाल अब काफी ज्यादा अबतर होती हुई जा रही है, तो वहां के मकामी लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। तो ऐसे में ये भी हम देख सकते हैं कि क्या कुछ मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, चूंकि कोरोना का भी दौर है, तो ऐसे में जब बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा तो कोरोना में भी काफी ज्यादा वो वुसअत आ जाएगी, वो ज्यादा फैलने में ऐसे अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो क्या कुछ एडवाइजरी है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से लोगों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। बाहर की आमद के साथ ही यहाँ पे देखा गया है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो बढ़ जाते हैं, खांसी, जुकाम, नज़ला जो है, इस तरह के इन्फेक्शंस जो है वो आम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से जिस तरह से कोरोना के केसेस जो है उनमें भी इजाफा हो रहा था, पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो लगातार यहाँ पे अलर्ट जारी किया जा रहा था, तमाम हॉस्पिटलों को अलर्ट किया जा रहा था कि कोविड के केसेस जो है वो फिर से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ऑलरेडी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो यहाँ पे आम होते हैं इस मौसम में, तो यही वजह है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने लोगों को एडवाइस किया है कि वो जो है एहतियात करे और ज्यादा अगर किसी को भी इस किस्म की कोई शिकायत, ऐसे इन्फेक्शन की शिकायत है जैसे नज़ला, जुकाम, फीवर अगर किसी को है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करे ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे जो कम्युनिकेट ना हो, दूसरों को वो दूसरों की तरफ वो ना फैले। तो इस तरह की यहाँ पे जो है वो एडवाइजरी पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस मौसम में ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो पाए जाते हैं। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है, उनमें ज्यादातर ये चीजें जो है वो हो जाती है। लेकिन ऐसे में जो है वो डॉक्टर्स जो है, जो तिब्बी माहिरीन है, वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत है तो तुरंत उनको जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल रईस मांगरे, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे वो चीज हमें मद्देनजर रखना चाहिए और इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। अगरचे ये वादी कश्मीर का जो मौसम है वो टूरिज्म के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन वहीं इसमें बीमारी के खदशात ज्यादा है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए तमाम जो इक़दामात हैं वो हमें उठाने की अशद जरूरत है। रईस मांगरे, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पुंछ में लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक शख्स के खुदकशी करने की बात की जा रही है, जबकि इसके घर
घर वालों का कहना है कि वो हिरासत में था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर आज गोनमाहू से भी बदतर है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है कि इस इलाके अमन पसंद लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। पीडीपी सदर ने कहा कि G20 से पहले जनूबी कश्मीर में कई नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने सवाल पूछा कि इन नौजवानों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर हुकूमत का दावा है कि अमन कायम है तो ये गिरफ्तारियां अमल में क्यों लाई जा रही है। मुफ्ती ने पूंछ वाकये की जांच का मुतालबा किया। क्या आप जानबूझ के इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हुए इनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा अपने डिफेंस में, अपने आप के अपने बचाव में ये लोग कोई ऐसा वैसा रास्ता इख्तियार करें जिसके नताइज हम सबको भुगतने पड़े। उनका एक इल्जाम इस तरह से लगाना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। सवालिया निशान लगाना आर्मी के ऊपर और खासकर उस चीज के ऊपर जो टेरर अटैक है, उनको वो भी जवाब देने चाहिए। जब उनकी रजीम थी या जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उसमें जब वो टेरर अटैक होते थे, जब वो अनंतनाग की सीट जीत कर आई थी और हमारे 8 जवान जो है अनंतनाग पहलगाम वाले रूट के ऊपर जो है शहीद कर दिए गए थे, सवालिया निशान तो उनके ऊपर भी, और जब वो चीफ मिनिस्टर थी उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी, और जब उनकी पार्टी जब सत्ता में थी उनके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है। अब हम यही कह सकते हैं कि चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या चीज वहां हुआ है, उस इन्वेस्टिगेशन के फौरन बाद में ही पता लगेगा। अब मैं इस मामले में ये समझता हूं कि जो फौज काम कर रही है वहां इसको इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन मैं भी ये भी गुजारिश करूंगा कि हर एक को रेगमाल नहीं बनाना चाहिए, हर एक आदमी को पकड़ के इसमें टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं तो फेलियर हुआ है, क्योंकि ये जो सुनसान जगह है यहां एक गाड़ी आर्मी की नहीं जाती है, ये जब चलती है तो कॉन्वॉय में चलती है। हम लोग यही समझेंगे कि नाजायज किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। गुनाहगार जो है अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसको फांसी पे चढ़ाओ। बीजेपी की जानिब से लजजन श्रीनगर में वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के अलावा पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन अभिजीत, पार्टी लीडर इंजीनियर एजाज के अलावा दीगर लीडर्स इस दौरान मौजूद रहे। भारी तादाद में लोगों ने इस कन्वेंशन में शिरकत की और नारेबाजी करके पार्टी के तय अपने सपोर्ट का इजहार किया। दरख्शां अंद्राबी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी तरह खानदानी पार्टी नहीं है जो सिर्फ अपने लिए काम करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वाज़ेह मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए और नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए इक़दामात हो। उनका कहना था कि यहाँ के सियासी लीडरान ट्वीट करने तक ही महदूद रहे हैं, मगर बीजेपी जमीनी सतह पर काम कर रही है। वहीं इंजीनियर एजाज ने कहा कि माजी में लजजन इलाके में मिनिस्टर्स होने के बावजूद ये इलाका पसमंदा ही रहा, लेकिन अब बीजेपी का दौर आएगा और हम तरक्की से सबको जवाब देंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लजन के लोगों को। आज तक इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे 2 मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोगों के मसाइल आज भी है। न रोडों की हालत आपने देखी, आप यहाँ जिस तरीके से न रोडों की काम हुआ है, न पानी का काम हुआ है, न कोई प्ले फील्ड का काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। मैं ये मानता हूँ, मैं एक डीडीसी होने के नाते जब इतना काम कर सकता हूँ, जब मिनिस्टर एक होगा वो क्यों नहीं करेगा। जो अपोजिशन में है इस वक्त उनको क्या दिखाई देगा, क्योंकि उनको बातें करनी है। हम जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं और काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है 5 अगस्त 19 के बाद यहाँ पे आज जो आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट का जो फ्लो है वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और यहाँ पे जिस तरह से स्मार्ट सिटी को आप देख लीजिए, आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है नौजवानों के लिए। अब पहले तो यहाँ MNC की बात ही नहीं होती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज। वो क्या होता है, वो कौन सा ड्रीम होता है, वो किस दुनिया में रहता है, ऐसा कभी सोचा नहीं जाता था। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। पुंछ में फौज के जवानों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 कॉन्फ्रेंस और आइंदा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र हिंदुस्तान पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पर हाई अलर्ट जारी है। बैनुल अक़वामी सरहद पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू के सांबा सेक्टर में हिंद पाक बैनुल अक़वामी सरहद पर जवान जदीद हाथों के साथ तैनात है। हमले के बाद सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इसी बीच हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर में और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं BSF की तरफ से जो सुरक्षा है बॉर्डर पे वो कड़ी कर दिया है। ये काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है और साथ ही साथ अगर हम बात करें G20 सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है उसको देखते हुए और अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसके चलते सिक्योरिटी को अलर्ट मोड पे कर दिया गया। और इसी बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरफ की अगर हम बात करें तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार पाकिस्तान का शकरगढ़ का इलाका है वो पड़ता है और ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वहाँ पे कई लॉन्चिंग पैड जो है वो आतंकवादियों की तरफ से बनाए गए हैं और लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि G20 सम्मेलन में जो है वो खलल डाला जा सके। और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरकर ने सयाहों से अपील की कि वो किसी भी धोखेधड़ी के शिकार न हो जाए और वो अपने नाम से ही खुद टिकट बुक कराएं। उन्होंने मजीद कहा कि गंडोला का सिर्फ ऑनलाइन टिकट दस्तयाब होता है। वाज़ेह रहे कि गुलमर्ग गंडोला में जारिया महीने कई बार सयाहों को जाली टिकट दस्तयाब की गई थी और बाद में उन शख्सों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश किया गया। सयाहों से अपील की गई कि वो धोखेबाजों से दूर रहे। नासिर हैं हमारे इर्द गिर्द जो टूरिस्ट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। सारे टूरिस्ट्स को, सारे विजिटर्स जो गुलमर्ग आने वाले हैं उनसे इस्तदा करते हैं कि जेन्युइन टिकट्स ही लेके यहाँ पे आएँ, जागरूक हो जाएं, ऑनलाइन टिकट ही बुक करें हमारी ओरिजिनल वेबसाइट से। अगर आप किसी भी ज़रिए से, किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से आप टिकट्स ले रहे हैं, होशियार रहिए, उस पर चेक कर लीजिए कि जो भी हमें टिकट्स दे रहा है वो सही टिकट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाने जा रहे हैं इस चीज़ का। बस यही अपील है कि सारे टूरिस्ट से कि अवेयर हो जाएं, ऑनलाइन टिकट ही बुक करें, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास टिकट्स देने का। जिले बड़गाम के नारबल में गुज़श्ता कई रोज से लगातार बारिशों की वजह से गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सहन में पानी जमा होने से मरीजों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। पानी की निकासी के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अस्पताल के सहन में पानी इतनी कसीर तादाद में जमा हो गया है कि मरीजों और तीमारदारों को चलने फिरने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इस सहन में चलने के लिए लकड़ी के टुकड़े और ईंटें डाले गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अस्पताल के सहन में कैसी हालत बनी हुई है। मकामी लोगों के साथ साथ मरीजों ने भी इंतजामिया से इसे जल्द अज जल्द हल करने की अपील की। आपने खुद देखा होगा कि वहाँ डाल बना हुआ है। इससे पहले पिछले साल भी मैंने वहाँ जब पानी जमा हुआ था, इवन कि हमारे जो वहाँ पुलिस चौकी जो हमारी, उसमें भी पानी बहुत जमा हुआ था। फिर मैंने फायर सर्विस वालों को फ़ोन करके वो पानी वहाँ से निकलवाया था। हमारे पेशेंट्स हैं वहाँ कैसे जाएंगे, आपने खुद देखा होगा। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, कम से कम जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ है मुश्ताक साहब, उनसे हमारा पुरजोर मुतालबा है कि कभी वो यहाँ आके खुद अपनी आंखों से देखे कि हमारे हेल्थ सेंटर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो आजकल हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि जो पानी वहाँ जमा हुआ है उसको जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि हमारे जो पेशेंट हैं उनको कोई परेशानी न हो। हमारा हॉस्पिटल यहाँ है, डिस्पेंसरी है, उसकी हालत आज इतनी बदतर है कि वहाँ कोई मरीज तो क्या अच्छा आदमी भी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता है,
क्योंकि इतनी वहाँ हालत ख़राब है। कई दिनों से मूसलाधार बारिशें हुई, सारा का सारा पानी वहाँ ही जमा हुआ है। लिहाजा आपसे इस्तदा की जाती है कि हमारी बात आगे तक पहुँचाई जाए ताकि वहाँ जो आने जाने का रास्ता जो भी वहाँ प्रॉब्लम होगी वो ठीक की जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से लगातार बारिशों की वजह से जो मुख्तलिफ जगहों पे पानी जो है पानी दाखिल हो गया है, और इसी तरह हम यहाँ नारबल के जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और यहाँ पे भी बारिश की वजह से जो पानी है वो यहाँ इस सहन में दाखिल हो चुका है और अब तक इसकी निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुकामी लोग यहाँ पे नाला है कि इसके जो यहाँ पे मुतल्लिका जो अफसरान है उनकी जानिब से यहाँ ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया है कि ताकि मरीज़ों की सहूलियत के लिए इस पानी को यहाँ से इसकी निकासी के लिए कोई इकदाम उठाया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये और यहाँ चेयर्स है या बाकी जो मरीजों को उठाने के लिए जो साजो सामान है वो भी यहाँ पे पानी में ही लटका हुआ है और इस तरह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और यहाँ तरजीही बुनियादों पे इंतज़ामिया को इकदाम उठाने चाहिए थे कि ताकि इसकी पानी की निकासी का अमल जो है वो शुरू किया जा सके, मगर नहीं हो पाया है। यहाँ मरीज़ मुतालबा करते हैं, मुकामी लोग मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सहन से जो पानी जमा है और यहाँ इसकी निकासी के लिए इकदाम उठाने चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन खुर्रा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टारहामा में खुसूसी समरी रिवीजन के हवाले से एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में माहिरीन और असातिज़ा ने वोट के इंदराज और इसकी अहमियत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल किया करें। बच्चों ने इस जानकारी सेशन रखने पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। एप्लीकेबल फॉर वोटिंग। तो आगे प्रोग्राम को लेते हुए मैं आपने खबर ला सकता है। जिले रामबन में मौसम साफ है, जिसके चलते यहां ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जिले रामबन में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। कौमी शाहरा 44 पर खाना बदोशों के नकलो हरकत की वजह से बड़ी गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। मुगल रोड अब भी मुसलसल बंद है। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे JKLH के साथ। आदाब।